تو مجھے کیونکہ بہت سے لوگوں کی کیوریز آ رہی تھی, بہت سے لوگوں کے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ کائنڈلی مائنڈ سائنسز کے اوپر ویڈیوز بنائیے, یہ کیسے کام کرتی ہے, یہ کیا ہے. تو آج اسپیشلی مائنڈ سائنسز کا ایک بہت افیکٹو ٹول جسے NLP کہا جاتا ہے, یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہا جاتا ہے, اس کے ایک بہت اہم حصے پہ بات کرنے جا رہی ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ NLP میں پایا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے پری سپوزیشن. یس, پری سپوزیشنز کا مطلب ایسی چیزیں جو کہ کرنے سے پہلے ہی ہم بلیو کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ NLP کی کچھ پری سپوزیشنز اتنی پاورفل ہیں, اتنی کمال ہے کہ آپ کو جو ہے یہ رسپانسیبل بنا دیتی ہیں اور آپ کو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیتی ہے. اور ایکچولی میں جب ہم مائنڈ سائنسز کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی روٹس اسلام تک جاتی ہیں, اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں کر کے دکھاؤں. مجھے یہ میرے مینٹور مسٹر سعود صادق نے جب یہ سکھایا تھا تو آئی واز بلون. السلام علیکم, آئی ایم نبیکہ بطول. آئی ایم اے مسلم انسپریشنل اسپیکر, ٹرینر, کوچ اینڈ انٹرپرینیور. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جو آپ لوگوں کے اتنے لائف چینجنگ میرے لیے آتے ہیں نا, کہ آپ لوگ بتاتے ہیں کیسے آپ لوگوں کی لائف چینج ہوئی ہے, اتنے خوبصورت اور اتنے محبت بھرے اور اتنے اپریشیٹیو کامنٹس آتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھا لگا. اور اسپیشلی مجھے وہ کامنٹس بہت اچھے لگتے ہیں جن کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ ایکچولی میں جو پرووائڈ کر رہی ہوں یا میرے سے لوگوں کی زندگی میں فائدہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے تھرو آپ لوگوں کا فائدہ ہو. تو جب مجھے ایسی کیوریز اور ایسے کمنٹس ملتے ہیں تو یقین کریے میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت, آج کی ویڈیو ایک کمال ہونے جا رہی ہے, کمال ہونے جا رہی ہے, کیونکہ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور مجھے بہت قریب سے سیکھنے کا موقع ملا. اور میرے ریئل لائف مینٹور, جو میرے ریئل مینٹور ہیں مسٹر سعود صادق, جو کہ لٹرلی از اے ڈائمنڈ, تو ان سے بہت سیکھنے کا مجھے موقع ملا. اور ان کے تھرو میں نے سیکھا, جو ایک مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہے, جو کہ ماشاءاللہ سے گریٹ کوچ, لائف کوچ بھی, بزنس کوچ بھی ہے, گریٹ انٹرپرینیور. بلکہ میں الحمدللہ میری طرف سے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر, اگر صرف لیونگ میں اور دنیا کے اندر میں بات کروں, تو اگر میں کسی کو رول ماڈل دیکھتی ہوں کہ میں ان کے جیسے بننا چاہتی ہوں تو مسٹر سعود صادق ہے. یس, باقی تو الٹیمیٹ رول ماڈل تو جیسے میں اکثر بتاتی ہوں ایک ہی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ڈیفینیٹلی اگر میں اسپیشلی لیڈیز میں چلی جاؤں تو میرے لیے میری سر کی تاج سیدہ کائنات سلام علیہ ماڈل. اینڈ ان کے بعد اگر میں کوئی تعریف کروں اسپیسیفکلی اس دنیا میں اگر میں دیکھوں, لیونگ میں دیکھوں, اور جن کو میں نے اپنی زندگی میں پایا, ان میں سے اگر میں مسٹر سعود صادق کو اپنا رول ماڈل دیکھوں. اور یہ عقیدت, محبت, پیار, اس کو الگ رکھتے ہوئے میں ریئلی میں مطلب کہ ایک الگ ہے, بٹ ایز اے پرسنالٹی, ایز اے پرسن میں لٹرلی ان کو اپنا رول ماڈل دیکھتی ہوں. تو میں نے ان سے جو ہے نا ایک بہت کمال چیز سیکھی تھی, کیونکہ وہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے اپنی لائف بہت مائنڈ سائنسز میں لگائی, بیہیویئرل سائنسز میں لگائی. تو مائنڈ سائنسز کے اندر ایک بہت افیکٹو ٹول ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا NLP, یعنی این سے نیورو, این سے لنگوسٹک اور پی سے پروگرامنگ, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جیسے کہ یہ NLP ورک بک, یہ بھی NLP کا, تو ایکچولی اٹ مینس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو ایکچولی میں یہ مائنڈ سائنسز کا ٹول ہے, بہت افیکٹو ٹول ہے, جو کہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ اور لائف چینجنگ ٹول ہے ایکچولی. تو اس کے اندر جو ہے ایک بہت کمال چیز ہے جنہیں پری سپوزیشنز کہا جاتا ہے. آج ہم پری سپوزیشنز کو اسٹڈی کریں گے. تو واٹ از اے پری سپوزیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی ٹولس, ٹیکنیکس اینڈ ایسے میتھڈز, ایسی چیزیں, ایسی بلیفس, ایسی بہت سی چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے. بٹ ان کا جو ہے نا, ان کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم وہ کر کیوں رہے ہیں, یا اس کا فائدہ کیا ہے, یا ہوگا کیسے. کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو کہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب لیکن وہ جو ریزلٹس انہیں کمال مل سکتے تھے نا, وہ نہیں ملتے. تو سب سے پہلے پری سپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے پری سپوزیشن ہوتی کیا ہے؟ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, ٹھیک ہے, کسی چیز سے پہلے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پری اسلامک ایرا. پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, یعنی اسلام سے پہلے والا ایرا, یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے والا زمانہ, جسے ہم زمانہ جہالیت بھی کہتے ہیں, زمانہ جہالیت بھی کہتے ہیں. تو یہ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, ٹھیک ہے. تو پری سپوزیشن میں پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, اور سپوز کا مطلب ہوتا ہے سپوز کر لینا, ٹھیک
ठीक है। प्रीसपोजिशन यानी कि एक चीज करने से पहले, एक एक्शन लेने से पहले या कुछ करने से पहले वैसे ही अपने ज़हन के अंदर एक हिडन बिलीफ रखना, कुछ अज्यूम कर लेना और कुछ सपोज कर लेना, बल्कि मैं इसे कहूंगी कि बिलीव कर लेना, ठीक है। अब प्रीसपोजिशन रियल लाइफ में कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू, कि अगर कोई इंसान कहता है कि पता है वो जो लड़की है ना वो भी पास होगी, इसके पीछे एक बिलीफ है। क्या प्रीसपोज उसने क्या किया हुआ है, उसका हिडन बिलीफ क्या है कि वो लड़की तो पास ही नहीं हो सकती थी, उसने तैयारी नहीं की थी, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो भी पास होगी। यानी कि प्रीसपोजिशन उसके अंदर क्या थी कि वो तो पास ही नहीं हो सकती थी, उसकी तो तैयारी नहीं थी, मैं तो ये यकीन करके बैठी थी। तो ये एक होगी प्रीसपोजिशन, ठीक है। ऐसे ही एक ग्रेट जो मुस्लिम है उसकी प्रीसपोजिशन, उसकी बिलीफ में क्या होता है, वो प्रीसपोज क्या करता है, प्रीसपोज क्या बल्कि वो बिलीफ ये करता है, और जो कि सच है कि जो लोग सच रहते हैं, जो लोग सादिक होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह अपना खास करम करता है और वो अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं और वो उसके ज़हन में होता है और वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा सादिक रहता है, सच बोलता है। यस, और सादिक का मतलब सच बोलना नहीं बल्कि एक वसीयत है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका मतलब प्रीसपोजिशन के पहले से ही सपोज कर लिया, पहले से ही यकीन कर लिया, ठीक है। तो बहुत सी बातें जो हम करते हैं उनके पीछे प्रीसपोजिशन होती है, हिडन बिलीव्स होते हैं, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो बातें करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें कंडीशन कर दिया गया, ठीक है, हमें कंडीशन कर दिया गया है गलत चीजों को बिलीव करने पे, ठीक है, गलत सोसाइटल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने पे, गलत चीजों को बिलीव करने पे। यस, जो क्या अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के भी कॉन्ट्रडिक्टरी आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोग जो है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, हाय हमारी किस्मत ही ऐसी थी, अस्तगफिरुल्लाह, हमारे नसीब ही ऐसे, अस्तगफिरुल्लाह, बदकिस्मती, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये क्या है, अब ये वो क्या एक्चुअली जाहिर कर रहे हैं, ये उनके बिलीव्स हैं, ये उनके प्रीसपोजिशन है, जिनके ऊपर वो यकीन करते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी, हमारी तकदीर में ये था, हमारे नसीबों में ये था, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह तो ये फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर, मैं तो तकदीरें बदलने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है कि मैं जो चाहूँ लिख दूँ और लिखा हुआ मिटा के दोबारा लिख दूँ। अल्लाह तो ये फरमा रहा है। तो एक्चुअली में वो क्या बिलीव करके बैठे हैं, वो क्या प्रीसपोज करके बैठे हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा लिख जाता है इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए फिर जो आगे उनकी गुफ्तगू होती है वो उस प्रीसपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है। या फिर जिंदगी है ही ऐसी जी, जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, सबको अपना अपना देख के चलना पड़ता है। यहाँ बड़ा नाप तोल के, जमाना ही ऐसा है, नेकी का जमाना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। एक्चुअली इनके पीछे उनके हिडन बिलीव्स हैं, वो कुछ चीज प्रीसपोज करके बोल रहे हैं। और ये जो प्रीसपोजिशन होती है ना, मेनली ये आती है हमारे बचपन से, हमारी पेरेंटिंग, हमारे माहौल, हमारे एनवायरनमेंट से। यस, तो वो चीजें प्रीसपोज कर रहे होते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी है, एक तो डेफिनेटली जो नेगेटिविटी है वो तो आती है शैतान की तरफ से, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी, ठीक है। और क्या हुआ कि एक तो ये उसकी तरफ से आई, और सेकेंडली हमें राह से भी भटकाती है, पर्सनल डेवलपमेंट से भी दूर करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड जो कि ग्रेट मुस्लिम के अंदर होता है, एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, यानी कि एबिलिटी होना कि रिस्पॉन्स कर सके, जिम्मेदारी लेना, इससे आप हट जाते हो, ठीक है, इससे आप हट जाते हो। तो ये ऐसे करता है, जबकि जो ग्रेट प्रीसपोजिशंस होती हैं वो आपको सही राह पे लगाती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं और आपको जो है एक अच्छी जिंदगी और कमाल जिंदगी जीने का मौका फराहम करती हैं। तो एनएलपी के अंदर अब चलिए थोड़ा साइंटिफिक और एनएलपी और माइंड साइंस की तरफ आ जाते हैं। तो एनएलपी के अंदर भी ऐसे कुछ कमाल प्रीसपोजिशंस हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है, लिटरली, जो कि आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल बनाती है और जो कि एक्चुअली हकीकत पे मबनी है। यस, जो कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। तो प्रीसपोजिशन क्या हुआ कि कोई चीज बात करने से पहले, ठीक है, कोई भी चीज करी हूँ, एक्शन करी हूँ, कुछ भी करने से पहले मैंने एक चीज को अज्यूम कर लिया, बिलीव कर लिया, ठीक है, और फिर मैं आपके साथ ये बात पेश कर रही हूँ। यस, ठीक है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा आज का सिंपल सी वीडियो है, हालांकि लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो सबसे पहले प्रीसपोजिशन क्लियर हो जाए कि व्हाट इज अ प्रीसपोजिशन। बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि एनएलपी की प्रीसपोजिशन एक्चुअली में होती क्या है। और सेकेंडली मैं आगे जो भी टूल्स टेक्निक्स पेश करने जा रही हूँ वो फीकी होनी थी अगर आपको जड़ ना किया। तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं इतनी कमाल और इतनी
अपनी लाइफ ट्रेनिंग प्रीसपोजिशन शेयर करने जा रही हूँ और उनका मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आया और मैंने लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट देखा और कितनी मीनिंगफुल है कितनी नहीं है, उनके हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करते आएंगे इंशाल्लाह। तो प्रीसपोजिशंस आर वेरी पावरफुल। अगर हम इन्हें पहचान पाए, इन्हें डिटरमाइन कर पाए और अपने माइंड को ट्रेन कर पाए। मेरे फादर जो हैं वो ये कहते हैं, जो कि बिल्कुल सच है और मैं इंडोर्स क्या करती हूँ, मैं इस बात को मैं क्या कहूँ सच मानती हूँ और बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है और डेफिनेटली इस्लाम से भी देखने को मिलता है कि जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल है ना, किसी इंसान को भी आ सकती है, कोई भी दौर हो, ठीक है, वो आज का दौर हो, 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, 300 साल पहले हो, 1000 साल पहले, कोई भी दौर हो ना, उसके अंदर जो एक ग्रेट स्किल हमें जो आ सकती है ना, वो ये है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाए। यस, क्योंकि हमारा माइंड एक बेलगाम घोड़ा है, ये दौड़ता रहेगा गलत डायरेक्शन में, इसकी लगाम खींच के इसको सही डायरेक्शन में दौड़ाना होता है। इसीलिए ही तो मोस्ट ऑफ द लोग आर कंडीशनड टू बिलीव मोस्ट ऑफ द थिंग। हाई सोसाइटी में रहने के लिए हाई सोसाइटी चीजें पहननी पड़ती हैं, हाई सोसाइटी ही लोग वो होते हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं। एलीट क्लास रहने के लिए, एलीट दिखने के लिए ब्रांड्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये सारी लो सेल्फ एस्टीम की निशानियां हैं। जी, क्लियर लोग, वाइज लोग, इंटेलेक्चुअल लोग समझते हैं बात को। यस, रेस्टोरेंट, पिकनिक टाइम्स, फैमिली टाइम को रेस्टोरेंट्स टाइम में बदल दिया, जबकि जो रियल लाइफ बॉन्डिंग्स थी, जो रियल लाइफ फैमिलीज थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज बन के रह गई। घरों में फैमिलीज की जगह इंडिविजुअल्स हैं, तो वो इससे हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें कंडीशन कर दिया गया बहुत सी चीजें बिलीव करने में। बट क्या हमें ऐसे ही रहना है? नेवर, क्योंकि अल्लाह भी वही फरमाता है कि अगर हम कोशिश करेंगे बदलने की, अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो ही अल्लाह बदलेगा हमें। यस, अल्लाह भी तभी बदलेगा और अल्लाह भी यही हमें कहता है, यानी कि कुरान पाक का ये मैसेज है कि क्या हम वही करते हैं कि जो हमारे बाप दादा करते हैं, यानी कि अगर जनरेशनल भी ये चल रहा है, अगर पीछे से ये आ रहा है तो क्या हम वही करते रहेंगे? नो, अगर यही करते आना है तो फिर तो हमारे जो असलाफ हैं, एंड स्पेशली मैं बात करूँ तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तो पहले देखा जाए तो प्री इस्लामिक एरा के अंदर तो डेफिनेटली इस्लाम नहीं था। फिर जब इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ तो एक्चुअली में उन्होंने हर बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, और जब डेफिनेटली वो गलत प्रूव हुआ तो इस्लाम को कबूल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पीछे रिवाज आ रहा था, जो पीछे से बिलीफ आ रहे थे, उन पे क्वेश्चन मार्क लगा के उनको तोड़ा और हक को अपनाया। तो हमें भी तो ये मैसेज है, कुरान पाक से भी ये मैसेज मिलता है और हमें भी ये मैसेज है कि जो हमने सोसाइटल नॉर्म्स बना दी, जो हमने अपना लाइफस्टाइल बना दिया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के देखें, झंझोड़े कंघालें कि क्या वो सही भी है कि नहीं। और ये बात जो है ये अल्लाह हमें बार बार कहता है, गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो, और अल्लाह ये भी फरमाता है कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जो लोग वाइज हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको जो है उनके चीजें सीखने को भी मिलती है। सो टुडे आज हमने बात की प्रीसपोजिशन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे एनएलपी की प्रीसपोजिशन के हवाले से कि वो होती क्या है एंड डिफरेंट है, बहुत पावरफुल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह।